Welcome and good morning to online class 6. I am your teacher, Miss Anna Maria. Today we are going to start the topic. It's topic about today's topic is about the Taj Mahal. Chapter number 3. Our chapter number 3 are going on. हमारा जो chapter है, chapter number 3 air, वो हमारा चल रहा है. अब उसके अंदर हमारे पास क्या एक टॉपिक है ताजमहल, जो हम ताजमहल से रिलेटेड आज जो हम लोग ताजमहल से रिलेटेड जो है वो हम लोग आज देखेंगे ना. टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब एक वीडियो है, पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम जो है टॉपिक पे आएंगे. वॉच द वीडियो अबाउट ताजमहल एंड वॉच वीडियो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखिएगा. मिस आवाज कट कट के आ रही है, स्लो. मिस आवाज स्लो आ रही है. मिस आवाज बहुत स्लो कट कट के आ रही है. बेटा बस गौर से सुने, आप इसको कोशिश करें सुनने की, देखें इसको गौर से. बेटा मेरे पास से आपके पास फुल वॉल्यूम आ रहा है. यस मिस.
see on this side, this one is a masjid, and here the king used to come and pray. In the middle, it is Taj Mahal in ivory white marble, and on the other side is a building called Jawab. Jawab means answer, and it used to function as a guest house. Taj Mahal is free from most of the natural calamities, especially earthquakes, because it has a foundation of 51 meters deep. So 51 meters deep is a really strong foundation, and it has four minars on four sides, and these minars atop act as a Taj Mahal, and they have slight slant towards outside, because if there is an earthquake, these minars may fall, but it should not fall on the Taj Mahal. That's how the construction is. Now we are going inside the mausoleum, so we need to use at least mind you that you can walk inside. And two tombs inside that one is of Shah Jahan and the other one is of Mumtaz. The major tomb is Mumtaz, but Shah Jahan's tomb is also there. The paintings that I mentioned before can be seen very close now. They are not just paintings, but framed with precious stones. You can also see the marbles with beautiful carvings, and all those minute works, they were done professionally and very carefully. It's just stunning, and there is no comparison for Taj Mahal. Guys, I'm coming out of Taj Mahal. I'm so sorry that I couldn't capture the tombs of Mumtaz as well as Shah Jahan because photography was not allowed inside. Anyway, the experience inside was really overwhelming. So touching, simple of cloud, or what word you call it as. The architectural wonder is really amazing, and the place to visit. And now we are standing on the bank of River Yamuna, and Taj Mahal stays on the banks of River Yamuna. Let's go and see River Yamuna too. It's partially dry now. This is River Yamuna, and Taj Mahal looks spectacular on its banks. From here we can also see the ruins of another construction. It is a partially constructed mausoleum. Shah Jahan wanted to build a like Taj Mahal for himself, but before its completion, his son took over and put him in house arrest. I do not know whether it is true or maybe. If you know anything about it, please not mention about it in the comments below. This is the masjid that we spoke about some time back, and it stands on one side of the Taj Mahal as a port event. And if we come to this side, we can see one of the minars of Taj Mahal. And farther there, we can see Taj Gate, or the main entrance to Taj Mahal. This is the main entrance to Taj Mahal. And standing right behind Taj Mahal, so we can get the back. And this building here it is on the other side of Taj Mahal, and it looks much similar to Masjid. This is Jawad or the answer. So it used to function as a guest house during the time of Mughal emperors. So friends, that was about Taj Mahal in Agra. Now we are traveling towards Agra Fort, where we have
नाउ कम्स टू द टुडेज टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है व्हाट प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम पोल्यूटेड एयर। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है वो एयर चैप्टर है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो हमने फॉग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो एयर से रिलेटेड है। अब क्या है इसके अंदर कि जो पोल्यूटेड एयर है उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, व्हाट प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम पोल्यूटेड एयर। पोल्यूटेड एयर जो है उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। द ताजमहल, have you heard of the Taj Mahal in Agra, India? Maybe you have been, maybe you have even been to see it. It is magnificent collection of building erected on the order of the Mughal Empire Shah Jahan following the death of his wife in 1631. Look at the image below and read the audio guide ट्रांसक्रिप्ट्स। ऑडियो गाइड ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती है? ऑडियो गाइड ट्रांसक्रिप्ट्स वो होती हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक ऑडियो दिया हुआ हो, आप हॉटस्पॉट ऑन करें, उसके अंदर कंप्लीट ऑडियो दिया हुआ हो। जैसे आप किसी जगह में जा रहे हैं, जैसे अगर ताजमहल का ऑडियो गाइड देखें तो वो आप ऑडियो गाइड सुनेंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये गेस्ट हाउस कहाँ है, वहाँ की मस्जिद कहाँ है। तो आपको कंप्लीट ऑडियो गाइड में बताया जाता है कि अंदर आपने किस साइड पे मूव करना है, तो आपको कौन सी जगह पे आप जाएंगे। तो क्या ऑडियो गाइड जो है वो एक कंप्लीट जो है एक आपकी हेल्प करता है ऑडियो गाइड कि आपने किस तरफ को मूव करेंगे तो क्या चीज़ है, आपको ऑडियो गाइड से पता चलेगा। और ऑडियो गाइड में नंबर भी होते हैं कि 1 नंबर पे ऑडियो गाइड आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 नंबर पे क्या है। तो ये ऑडियो गाइड्स होते हैं। सो अब जो हमारे पास ताजमहल का जो ऑडियो गाइड है वो अब हम सुनेंगे। वेलकम, यू आर स्टैंडिंग इन द मेन गेटवे ऑफ अ ताजमहल, the tomb of Emperor Shah Jahan's wife, Mumtaz Mahal. Her name means beloved or nymph of palace. And you will see how much ornaments have been created in her honor. This gateway is a magnification structure in itself, designed to impress you. It is nearly 100 feet high and 150 feet wide and made from red sandstone. Please walk inside. As you can see, no expense has been spared in the detail. In the as in these floral forms that are made of marble and laden with precious stones, this very skillful work is still done by hand in workshops in Agra today. The heavy door that you walk through is made up of 8 different metals. Please notice the beautiful calligraphy on the black marble quotations from the Quran. Now walk through to see the beautifully plant garden. On your left is the mosque and to your right is a guest house. Straight ahead is the tomb itself. From this distance, it looks small, but as we get closer, you will see that it's closer in size. अब ये क्या है, अब हमारे पास ये ऑडियो गाइड है। शुरू में क्या बताते हैं कि वेलकम, आप जो है ताजमहल के जो मेन गेट है उस पर स्टैंड हुए हुए हैं, उससे आप बिल्कुल अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, जो द टॉम ऑफ एम्पायर शाहजहां वाइफ, जो शाहजहां की वाइफ है उनका वहाँ पे टॉम है, ठीक है। उनके जो नेम है उसका नेम का मीनिंग क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एन ऑब्जेक्ट दैट इज ब्यूटीफुल रादर देन यूजफुल। जो क्या है, उनके नेम का क्या मतलब है, ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड यू विल सी हाउ मच ऑर्नामेंट क्रिएटेड इन हर ऑनर, उनके ऑनर के अंदर ये जो है ये बिल्डिंग जो है उनके उनके लिए खड़ी की गई थी, उनके लिए बनाई गई थी। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ताजमहल का, इट इज़ नियरली 100 फीट हाई। ये 100 फीट हाई है, जो हाइट में जो 100 फीट हाई है, एंड 150 फीट वाइड, जो 150 फीट वाइड जो इसकी चौड़ाई है वो 150 वाइड है, ठीक है, 150 फीट्स है।
फिर उसके बाद कहते हैं प्लीज इनसाइड, आप अंदर आए तो आपका कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अंदर आए तो आप देखें कि क्या है कि किन इसके अंदर जो है प्रीशियस स्टोन जो है वो इसके अंदर जो है वो जड़े जड़े हुए हैं, उसके अंदर जो है प्रीशियस स्टोन से उसके अंदर काम हुआ हुआ है, जो बहुत जो सारा काम ये जो है हैंड वर्क है ये। और जो आप जिन डोर से आप गुजर के आए हैं वो कौन से जो 8 डिफरेंट मेटल से बने हुए वो डोर्स हैं, जो कैलीग्राफी हुई हुई है, जो कोटेशंस कुरान से ली गई हैं, वो ब्यूटीफुल कैलीग्राफी जो वो ब्लैक मार्बल कोटेशन से हुई हुई है, ठीक है। अब ताजमहल के आप स्टेट अहेड एज अ टॉम ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब टॉम के जो उनका मज़ार है उनके बारे में भी बताया गया। ऑन हर लेफ्ट इज द मॉस्क्यू, उनकी जो मॉस्क्यू है जो जहाँ पे वो नमाज वगैरह अदा किया करते थे, तो वो क्या है वो लेफ्ट साइड पे मॉस्क्यू है, ताजमहल के लेफ्ट साइड पे मॉस्क्यू है, मस्जिद है, और उसकी राइट साइड पे गेस्ट हाउस है। जब उनके गेस्ट वगैरह आते थे, जो विजिटर्स आते थे, गेस्ट हाउस क्या होता है, गेस्ट हाउस इज अ प्लेस वेयर विजिटर कैन स्टे, जहाँ पे जो विजिटर्स होते थे वो स्टे करते थे। और मॉस्क्यू क्या होती है, इज अ प्लेस जहाँ फॉर वर्कशिप, इबादत करने की जगह होती है, ठीक है। तो क्या है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या थी, मॉस्को थी, और राइट साइड पे क्या था, गेस्ट हाउस। ये बिल्कुल सामने जो है ताजमहल है। अब ताजमहल के लेफ्ट साइड पे मॉस्क्यू है और राइट साइड पे जो है वो गेस्ट हाउस है। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है कि राइट साइड पे जो जो हमारे पास जो मॉस्क्यू उसके बारे में भी, और गेस्ट हाउस के बारे में भी, जो उसको जवाब भी कह रहे थे उस वीडियो के अंदर, जवाब का हाल कहते उस दौर में गेस्ट हाउस को वो लोग जवाब कहते थे। बट एज वी गेट क्लोजर, ठीक है, वो कहते हैं कि देखने में तो आप दूर से देखते तो ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब आप इसके करीब जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप इसके 100 फीट और 150 फीट से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है। रीस्टोरिंग द ताजमहल, अब ताजमहल की रीस्टोरिंग क्या है कि इसके अंदर जो अब TLC जो है वो टेंडर लविंग केयर है। अब क्या है, जब इसके अंदर जो पोल्यूटेड एयर की वजह से जो ताजमहल जो है उसके उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह आई हुई थी, उसको उन्होंने किस तरह रिमूव किया, किस तरह उसको रिस्टोर किया, तो अभी हम वो देखेंगे कि किस तरह उसको रिस्टोर करते हैं। Restoring the Taj Mahal, the original marble of a Taj Mahal has been discolored by air pollution, and a great deal of restoration work is now underway. The article below describes what is being done. ठीक है। अब क्या है, रीस्टोरिंग जो ताजमहल का क्या जो कलर जो है वो डिसकलर हो गया, जो उसका वाइट कलर था वो क्या है, वो जो है वो गंदा हो गया था। किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जो उसका कलर जो है वो ख़राब हो गया था। ताजमहल वॉल्स टू रिसीव सम TLC। अब TLC स्टैंड फॉर क्या है, टेंडर लविंग केयर। मतलब उन्होंने इसकी क्या, उसका जो मार्बल था उसका जो है वो उसका जो ट्रीटमेंट रीस्टोरिंग जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट किया। इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आइकॉनिक क्या होती है, जो मतलब बहुत अच्छी जो खास बिल्डिंग्स होती हैं उनकी बात हो रही है। बट टाइम एंड पोल्यूशन हैव टेकन देयर टॉल। मतलब क्या है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग है, और बहुत इट्स अ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है ये। बट टाइम एंड पोल्यूशन हैव टेकन देयर टॉल, सो from this week the Taj Mahal is getting a unique restorative beauty treatment of its own. Over a year, and accumulations of dust and other pollution from the industrial city of Agra has stained its walls yellow. Now those famous white marbles walls will be coated in multani mitti or fuller earth, a type of clay that usually used in face masks and other beauty treatments. The clay is left on overnight and then removed as soon as it begins to dry. The treatment will be applied until March 2008 and will be repeated for another 3 months. Earlier in 2009, however, the however
The monumentums will remains open as normal throughout the work. Hopefully वर्क मोर सेंसेशनल देन ओवर। अब इसके अंदर क्या बताया, जो उसका रिस्टोरिंग ट्रीटमेंट किया गया था वो किस तरह किया गया। ताजमहल की जो वॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो रही थी, क्योंकि पूरे बहुत टाइम से जो है वो उसकी रिस्टोरिंग नहीं की गई थी। तो क्या उसकी जो वॉल्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। एक्यूमेशंस क्या होती है कि बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाना। एक्यूमेशंस मीन होता है जमा हो जाना, जम जाना। तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी, उसकी वजह से भी। और इंडस्ट्रियल सिटी जो आगरा है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, उसकी वजह से भी जो उसकी जो वॉल्स थी उसके ऊपर येलो स्टेन्स आ गए थे, येलो कलर के स्टेन आ गए थे। तो अब उन्होंने उसके उन मार्बल्स को किससे कोटेड किया, मुल्तानी मिट्टी से। और या मुल्तानी मिट्टी, और उसको फुलर अर्थ भी कहा जाता है कि इट्स अ टाइप ऑफ क्ले। ये एक मिट्टी की टाइप है, ठीक है, जो यूजुअली जो आमतौर पे ये फेस पैक्स में या फेस मास्क के अंदर और बॉडी ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन उन्होंने वहाँ का जो मार्बल था उसके ऊपर इस लेयर को कोट किया, फिर उसके बाद उसको ड्राई होने दिया। इट्स बिगेन टू ड्राई, द ट्रीटमेंट विल बी अप्लाई। फिर उन्होंने ये ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू 3 मंथ्स किया, ताकि जो उसकी जो वॉल्स हैं, उसके जो स्टेन्स हैं, जो येलो स्टेन्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो उससे क्या, ये 2008 की बात है। तो फिर उन्होंने इसकी रीस्टोरिंग की, तो क्या वो बिल्कुल सही हो गया। होपफुली लुकिंग फॉर सेंसेशनल देन एवर। अब जो है वो उसकी जो है वो ये लोग केयर भी करते हैं। अब क्या है कि जब ताजमहल में वो लोग अंदर महल के अंदर एंटर होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या एक शूज़ के ऊपर एक वेयर करने के लिए देते हैं। जब वो टिकट्स लेते हैं तो वहीं पे वेयर करने के लिए देते हैं, ताकि जो अंदर का जो उनका मार्बल है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो क्या वो शूज़ के ऊपर वेयर करने के लिए कॉटन टाइप वाइट कलर के जो है वो फुल जो है वो शूज़ के ऊपर वेयर करने के लिए वो देते हैं, ताकि जो है वहाँ पे जो है वो उसका जो मार्बल है वो ज़्यादा ख़राब वगैरह ना हो। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था। अब उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिमार्केबल अबाउट द गेटवे ऑफ द ताजमहल। अब ताजमहल जो इसका रिमार्केबल क्या है कि क्या है, इट इज़ नियरली 100 फीट हाई। अब क्या है, उसकी हाइट क्या थी, 100 फीट हाई थी, और उसकी जो वेट थी वो कितनी थी, 150 फीट थी। हाँ, स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ ताजमहल। ताजमहल की हाइट कितनी है। सेहान, 100 100 मुझे बताएं, ये जो ताजमहल है उसकी हाइट हाई और उसकी फीट की जो उसकी वाइड है वो कितना है, उसकी हाइट और वाइड जो हाइट 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 100 है, फीट 150 है। जो हाइट जो है वो 100 फीट है, और जो उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 150 फीट है। ठीक है। व्हाट डज द ऑडियो गाइड डिस्क्राइब एज यू बीन लेफ्ट एंड राइट एज यू वॉक थ्रू द मेन गेटवे। अब इसके अंदर क्या है, जब आप लोग जो हमने ऑडियो गाइड पढ़ा है उसके अंदर क्या बताया गया कि ताजमहल के राइट और लेफ्ट पे क्या था। वीडियो में भी बताया और मैंने भी बताया, ताजमहल के राइट और लेफ्ट पे क्या था। सेहान, खतीजा, नरीबा, टेल मी। ठीक है। ऑडियो गाइड में भी बताया गया, ऑडियो गाइड वो है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इट्स ए दैट इट्स ऑन द, जो हमारे पास लेफ्ट था, लेफ्ट पे क्या था, लेफ्ट पे मॉस्क्यो थी, मस्जिद थी यानी। और जो उसका राइट था, राइट पे क्या था, गेस्ट हाउस था। ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ क्ले वे यूज टू क्लीन मार्बल ऑफ ताजमहल। ताजमहल जो कौन सी क्ले से, कौन सी मिट्टी से जो ताजमहल जो है वो साफ किया गया था। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी से जो है वो उसके जो मार्बल्स हैं उसको साफ किया गया था। व्हेन डज द न्यूज़ आर्टिकल से द वर्क इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल कब से, द आर्टिकल से द वर्क फ्रॉम जनवरी अंटिल एंड रिपीटेड 3 मंथ्स। ठीक है। जनवरी 2008 में ये स्टार्ट हुआ था और उसके 3 मंथ्स तक वो रिपीट होता रहा था, ताकि जो उसकी जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखें, ये उसका जो एक ताजमहल है, जो उसका गेट
ग्राउंड प्लान विद ऑडियो गाइड हॉटस्पॉट ऑफ द ताजमहल। अब ये क्या है, ताजमहल का अभी हमारे पास मैप दिया हुआ है, वो इस पे ऑडियो गाइड है कि फर्स्ट पे जो है वो क्या है, वो ताजमहल है। फिर उसके बाद क्या है, 2 पे जो है वो गार्डन है। फिर उसके बाद 3 पे जो है वो टॉम है, टॉम जो मज़ार है वो है। और 4 पे क्या है, मॉस्क्यू है। ठीक है, तो ये जो है ये तो हमारे पास ऑडियो गाइड था। ठीक है, ये तो हमने रीड किया। हमारा जो चैप्टर था उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक था ताजमहल। ठीक है, जो ताजमहल पोल्यूटेड हो रहा था, पोल्यूटेड एयर से उसके ऊपर स्टेन आ रहे थे, गंदा हो रहा था, तो ये एयर चैप्टर में था, तो हमने एयर चैप्टर से रिलेटेड ही था ये भी टॉपिक हमारा। तो अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स पे। बेटा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? No, miss. Okay, come to the assignment. The assignment is that there is a words, vocabulary words दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इनकी definitions भी दी गई हैं, सब words की definition और यहाँ पे vocabulary words हैं। अब आपने इन words को इनकी definition से मैच करना है। ठीक है, अब जैसे टू स्लिप की एक तो मैच हुआ है, टू स्ट्रोफ, प्रीहर्ब्स, गार्डन, वर्ड, प्योर, बटरफ्लाई। अब आपने इनकी जो करेक्ट डेफिनेशन है, जो इसकी करेक्ट मीनिंग है, उसके साथ आपने इसको मैच करना है। और एक और भी है, अब ये क्या, मैच वर्ड विद करेक्ट डेफिनेशन, इसको भी आपने यही करना है। फ्लैग्स जो है वो उसको मैच किया हुआ, फायर साइड, टू वीज, हार्मफुल और पोल्यूशन। अब इनको आपने मैच कर मत करो ना। जी। टीचर वीडियो में आवाज नहीं आएगी, आप ग्रुप में सेंड कर देंगी। अच्छा ठीक है, अब क्या है, ये जो है ये तो आप लोग का जो असाइनमेंट है वो ये असाइनमेंट है कि आपने इसको मैच करना है, इसकी डेफिनेशन को इसके साथ आपने मैच करना है। और इसके अंदर भी वोकैबुलरी में, दोनों वोकैबुलरी में इनको आपने करेक्ट डेफिनेशन से इसके साथ इसको मैच करना है। बेटा डू यू हैव क्वेश्चन अबाउट दिस से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन असाइनमेंट और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो मिस। ओके ठीक है, ओके, so thank you students. Okay student, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।